Good morning everyone. I am S. P. Gupta from Sunshine Senior Secondary School, Zakhnia. So students, as you know, yesterday we discussed some important problem related with continuity of a function. So today also I take some important problem which is asked in CBSE board examination. So you concentrate and try to understand the problems. So first we take the important questions. The question is, find this question asked in CBSE board examinations 2013. Students, this question asked in CBSE board examination 2013. The question is, find the value of A and B. Find the value of A and B so that the function, find the value of A and B so that the function f(x) is equal to 1. f(x) equal to 1 when x greater than x less than or equal to 3. f(x) equal to 1 when x less than or equal to 3, and this is ax plus b when x less than 5 but greater than 3, and this is 7 when x greater than or equal to 5. Is continuous at x equal to 3 and 5. This function is continuous at the point x equal to 3 and 5. So students, here you see that this is a question which is asked in CBSE board examination 2013. This is important question, most important questions. The question is, find the value of constant quantity A and B so that the function f(x) equal to 1, x less than or equal to 3, and f(x) equal to ax plus b, x less than 5 but greater than 3, and next f(x) equal to 7 when x is greater than or equal to 5. This function is continuous at the 2 points x equal to 3 and x equal to 5. Means in the question it is given that our function is continuous at the point x equal to 3 and 5 also. So let us solve it. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको डिस्क्राइब किया गया है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि क्वेश्चन में फंक्शन पॉइंट्स के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है, तो उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट दोनों पे कॉन्टिन्यूअस होगा, तो उस कंडीशन को अप्लाई करना है। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस को आपको ध्यान देना है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन में फंक्शन कंटिन्यूअस है पॉइंट x इक्वल टू 3 के ऊपर, और हमें कांस्टेंट की वैल्यू a b को फाइंड आउट करना है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 3 के ऊपर, तो आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है कि x इक्वल टू 3 के ऊपर ये राइट हैंड साइड से भी कंटिन्यूअस होगा, लेफ्ट हैंड साइड से भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर हम इसको राइट से कंटिन्यूअस करते हैं तो अब हमारा फंक्शन x ग्रेटर देन 3 पे डिफाइंड, तो उसमें हम ए और बी को इन्वॉल्व कर पाएंगे।
लेकिन अगर कोई स्टूडेंट को लेफ्ट से कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन पे अप्लाई करता है तो उसमें हम कांस्टेंट वैल्यू को इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सावधानी आपकी ये है कि जो आपके क्वेश्चंस का क्वेश्चन पोर्शन है, जैसे कि ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो उसमें वो इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसा मैं आपको बता दिया कि अगर आप इसको लेफ्ट हैंड रूल पे जो कॉन्टिन्यूटी की डिफिनेशन है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ए भी इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। राइट हैंड वाले पे देख रहे हैं कि x ग्रेटर देन 3 के ऊपर ए भी इन्वॉल्व है, इसलिए यहां से फॉर्मेशन लीजिए, दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, मतलब कंटिन्यूअस है 3 पे, तो इसको हम 3 पे राइट पे क्यों ले रहे हैं उसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि अगर हम राइट में x ग्रेटर देन 3 लेते हैं 3 प्लस पे ही हमारा a और b इन्वॉल्व है फंक्शन में। देखिए x ग्रेटर देन 3 पे ही ये फंक्शन मिल पाएगा, x लेस देन 3 पे हमारा a भी इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इसको अगर 3 माइनस पे लेते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड क्वांटिटी पे एडजस्ट करते हैं, तो उसमें हम कांस्टेंट a b को इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारा रिलेशन नहीं बनेगा। So let us proceed. fx is equal to f3. Next, this implies limit h tends to 0 f3 plus h. This is equal to f3. This is the definition of right hand limit and find x equal to 3. Next, you see in the function when x is greater than 3, here x tends to 3 plus means x is greater than 3, then fx is equal to ax plus b, therefore f3 plus h, 3 plus h means greater than 3, तो हम इसको वही ऑपरेट करेंगे जहां हमारा फंक्शन 3 से ग्रेटर पे डिफाइन होगा। तो फंक्शन में देख चुके हैं कि where x is greater than 3 then our function fx is defined as ax plus b, so we apply f3 plus h, so we apply 3 plus h in the place of x. So similarly in the right hand side we also put 3 plus h in the place of x, we get a 3 plus h plus b. And what is the value of f3? So we see here fx is equal to 1 when x less than or equal to 3. Since fx is equal to 1, fx is equal to 1 when x less than or equal to 3. Therefore x f3 equal to 1. हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा फंक्शन fx इक्वल टू 1 गिवन है, कंडीशन है when x 3 से लेस है और इक्वल है, इसी इक्वल पे ही ये फंक्शन हमें डिफाइन किया गया है, इसलिए हम इस फंक्शन में x की बेस पर इक्वल कर रहे हैं और यहाँ पे कोई s इन्वॉल्व नहीं है, सो हमें वैल्यू 1 प्राप्त हो रही है। तो हियर वी गेट both value f3 which is 1 and f3 plus s which is 3 which is a 3 plus s plus b. So we put here these values, get this implies limit s tends to 0 a 3 plus h plus b, and this is value of f3 which is 1. So when h tends to 0 we get this implies a 3 plus 0 plus b equal to 1. This implies 3a plus b equal to 1. So we get here a relation between c and d. So student, this is clear. Why we apply the condition of continuity at the point x equal to 3 from the right hand limit, you understand? हमने इस फंक्शन में 3 पे जो कॉन्टिन्यूअस था उसको राइट हैंड से कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन पे क्यों अप्लाई किया, इसके बारे में मैं आपको पहले डिस्क्राइब किया कि अगर हम इसको लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी रूल पे अप्लाई करते हैं, सो 3 माइनस पे जो हमें फंक्शन डिफाइन है 3 से लेस पे, उसमें ये है fx इक्वल टू 1, उसमें हम कांस्टेंट क्वांटिटी a b को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम उस
उस पे ले रहे हैं, c प्लस पे ले रहे हैं, जिस पर कि फंक्शन में हमारा a b इन्वॉल्व मिलेगा। सो आप देख रहे थे कि when x is greater than 3 and less than 5, our function is defined as fx equal to a plus b. So we take the condition of continuity from the right hand limit, we get and proceed, we get a relation between a and b, which is 3a plus b equal to 1. So student, that's clear. Next, you see our function is also continuous at the point 5. So we again apply the condition of continuity at the point x equal to 5, and we again get a relation between a and b. And after that, if we find two relations, first is this and second we proceed, then solve, we get the value of a and b. So we proceed. Now, f is also continuous at x equal to 5. Students, in the question it is also given that our function is continuous at the point x equal to 5. Therefore, अब देखिए एक कंफ्यूजन आपके माइंड में है कि सर अगर ये कंटिन्यूअस है तो हम इसको लेफ्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट पे भी कंटिन्यूटी की कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं, राइट पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि अगर हम लेफ्ट पे अप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू में ए भी इन्वॉल्व होता है कि नहीं, राइट भी इन्वॉल्व, राइट से इसको कंटिन्यूटी की कंडीशन भी इन्वॉल्व करते हैं तो ए भी इन्वॉल्व होता है कि नहीं। सो आप चेक करेंगे। देखिए हियर अगर हम x ग्रेटर देन 5 पे लेते हैं, राइट हैंड लिमिट से इसको क्वांटिटी की कंडीशन लेते हैं, तो उसमें हम ए बी में रिलेशन नहीं बना सकते हैं, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। अगर हम इसको लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी रूल पे लेते हैं तब हम जाके देख रहे हैं कि x लेस देन 5 पे फंक्शन हमारा x इक्वल टू ax प्लस b है। सो उसमें हम a b के बीच में रिलेशन बना पाएंगे। सो यही प्रिकॉशन है जिसको ध्यान देना स्टूडेंट्स। इसलिए हम यहाँ पे f is also continuous at point 5, so we take x tends to 5 minus. I think your doubt is clear. क्यों हमने 3 वाले पॉइंट पे 3 प्लस लिया, 5 वाले पॉइंट पे 5 माइनस लिया, मतलब हम उसको अप्लाई करते समय इस बात का ध्यान देंगे कि उसमें हमारा 5 3 प्लस पे जो लिए थे इसमें ए भी इन्वॉल्व हो पा रहा है, 3 प्लस पे इन्वॉल्व हुआ था, 3 माइनस पे नहीं इन्वॉल्व हो रहा था। इसमें अगर हम 5 प्लस पे लेते हैं तो ए बी में रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए हम 5 माइनस लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी रूल पे इसको ले रहे हैं। fx is equal to f5. This is the condition of continuity at the point x equal to 5 from the left hand. So this terms implies limit s tends to 0 f5 minus s equal to f5. Now students, you see the functions when fx is equal to when x tends to 5 minus x less than 5, then fx is equal to 5. In the function it is clear that when x less than 5, then fx equal to ax plus b. Fx equal to ax plus b. Therefore f 5 minus s. 5 minus s. In the place of x, you put 5 minus s in the left hand side. So also you put in the place of x 5 minus s, get the value of f 5 minus s, a 5 minus s plus b. Therefore f 5 minus s is equal to 5a minus 5s plus b. Again we have to find the value of f 5. So when x greater than or equal to 5, then
fx is equal to 7. Here in this function you see x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है या 5 की इक्वल है, तो फंक्शन fx की वैल्यू 7 दी गई है। तो ये फंक्शन हमारा 5 से इक्वल में डिफाइंड है, सो वी अप्लाई f5, वी गेट 7। x के प्लेस पे 5 पुट अप करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में पुट करेंगे, जैसा कि दिख रहे हैं राइट हैंड साइड में x इन्वॉल्व है नहीं, सो हमें कोई वैल्यू प्राप्त होनी नहीं है, 7 मिल रही है। So we put these values in here, we get another relation between a and b. Therefore, this tops limit as tends to 0. What is the value of f5 minus s? You see here the value of f5 minus s equal to 5a minus 5s plus b. So we write 5a minus 5s plus b, and the value of f5 is 7. So it is equal to 7. When s tends to 0, this term will be 0. So we get 5a plus b equal to 7. This is the equation number 4. So students, it is clear that here we find two relations. First relation 3a plus b equal to 1, which is equation number 1, and when we apply that function which is continuous at the point x equal to 5 from the left hand limits, then we get another relation between a and b, which is 5a plus b equal to 7. So now if we solve equation number 1 and equation number 2, then we get the value of a and b. So we solve. First equation is 3a plus b is equal to 1. This is first equation. So we solve minus this b and this b are cancelled to each other. 5a minus 3a, we get 2a. 7 minus 1, 6. This implies a equal to 6 by 2, this is 3. Now we put a equal to 3 in any 1 or 2. We put a equal to 3 in any equation number 1 or 2, we get the value of b. So we put a equal to 3 in 1. Therefore 3 into 3, in the place of a we put 3 plus b, here plus b is equal to 1. This implies 9 plus b equal to 1. This implies b equal to 1 minus 9 is equal to minus 8. So your answer is a equal to 3, b equal to minus 8. So students, जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये 2003 का सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया था, जो फंक्शन डिस्क्राइब था और ये 2 पॉइंट्स के ऊपर कॉन्टिन्यूअस था। सो हमने दोनों पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी की कंडीशंस को अप्लाई किया, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रिकॉशंस को ध्यान दिया गया कि राइट से भी कॉन्टिन्यूअस होता है, लेफ्ट से भी कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि अगर ये मेरा फंक्शन राइट से कॉन्टिन्यूअस पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हम जो मेरा रिक्वायर्ड पोर्शन है ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना, वो इन्वॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। अगर राइट से अप्लाई करने पे इन्वॉल्व नहीं होता है तो आप लेफ्ट से इन्वॉल्व करिए। इन्हीं चीजों को इसमें ध्यान दिया गया। 3 पे जैसा कि आपने देखा 3 प्लस पे मैं इन्वॉल्व किया, अप्लाई किया, उसमें ए बी में रिलेशन बनाया। 5 प्लस पे हमें ए बी की भी रिलेशन नहीं मिल रहा था, तो हमने 5 माइनस पे अप्लाई किया। सो इस बात को ध्यान देंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट वी टेक another some important questions, so you concentrate next question.
ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2013 में पूछा गया है। ये एनसीईआरटी एग्जाम प्लस का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन है कि इफ fx is equal to under root 1 plus px minus under root 1 minus px divided by x less than 0 but greater than or equal to minus. And 2x plus 1 divided by x minus 2 when x less than or equal to 1 greater than 0 is continuous in closed interval minus 1 1. Then find the value of t. Students, this question is very important questions. थोड़ा सा questions कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन या इंटरवल इन्वॉल्व हुआ है, जिसको मैं भी अभी आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि कोई भी फंक्शन अगर इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है तो उसकी कंडीशंस क्या बनती है, आप इसको देखेंगे। सो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी की कंडीशन एंड इंटरवल क्या होती है मैं उसको बता दूं। इफ f is continuous, if f is continuous on closed AB, if any function is continuous on closed AB, closed interval AB, then first condition, this is the condition of a function which is continuous on closed interval AB is first, this function means is continuous on open AB। अगर फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो उसके लिए कंडीशन है कि उसको ओपन एबी में कंटिन्यूअस होना होगा। अब जान जाइए कि अगर कोई फंक्शन ओपन एबी में कंटिन्यूअस है तो इसकी मीनिंग क्या है। इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन ओपन एबी देन इंटरवल्स के बारे में स्टूडेंट्स आपको बताया गया होगा, देन इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन ओपन एबी। ओपन एबी में कंटिन्यूअस होने का मतलब कि ओपन एबी के एवरी पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो हम उसको मानेंगे कि ओपन इंटरवल एबी में कंटिन्यूअस है। क्लोज उसी तरीके से क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस की कंडीशन तो चेंज हो रही है। क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होने के लिए फंक्शन f को कंटिन्यूअस होना होगा ओपन में। एंड सेकेंड, limit x tends to a plus fx is equal to fx. Do you know what? This is the continuity condition for a function at point x equal to from the right hand limit. फंक्शन अगर क्लोज्ड AB में कंटिन्यूअस है तो उसको पॉइंट्स A के ऊपर राइट हैंड लिमिट से कंटिन्यूअस होना होगा। एंड लास्ट एंड थर्ड, limit x tends to b minus of fx is equal to fb. And also if a function is continuous on the closed interval AB, then it is also continuous at the point x equal to b from the left hand limit. So this is the condition for a function to be continuous in closed interval AB is what? The condition of continuity of a function on closed interval AB is this function is continuous on open AB
ओपन एबी में कंटिन्यूअस होने का मतलब ओपन एबी के इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड एफ इज आल्सो कंटिन्यूअस at the point A from right hand limits x tends to a plus, and it is also continuous at the point B from left hand limit. So this is the condition for continuity of a function on closed interval. ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी की कंडीशन को एन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल एबी में और ओपन इंटरवल एबी में क्या होती है इसको मैं डिस्क्राइब कर दिया हूं, सो आप इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So, since f is continuous, so students, here in this question it is given that a function is continuous of closed interval -1 plus 1. Since f is continuous on closed interval -1 plus 1, जैसा कि आपको बताया गया कि ये क्लोज इंटरवल -1 plus 1 में कंटिन्यूअस है, then f is continuous on open interval -1 plus 1. तो ये ओपन इंटरवल -1 plus 1 में कंटिन्यूअस होगा। अब जरा थोड़ा सा समझिए, ओपन इंटरवल -1 और +1 के बीच में एक पॉइंट 0 आता है, और इसका मतलब कि 0 पे कंटिन्यूअस होगा। If our function is continuous open interval -1 plus 1, this means it is continuous at every point on open interval. So -1 plus 1 के बीच में एक पॉइंट 0 है, 0 पे फंक्शन भी हमारा डिफाइंड है, तो 0 पे कंटिन्यूअस होगा। तो इंफॉर्मेशन इज हियर, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस at the point x equal to 0. So this implies f is continuous on -1. This implies f is continuous at x equal to 0. अब देखिए ये तो हम क्लियर कर चुके हैं कि x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। अब आप देखिए हमें वैल्यू p की निकालनी। अब हम x इक्वल टू 0 पे राइट हैंड अप्लाई करें कि लेफ्ट हैंड अप्लाई करें, क्योंकि किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि वो राइट हैंड लिमिट से भी कंटिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड लिमिट से भी कंटिन्यूअस है। अब देखिए अगर हम इसको 0 प्लस पे लेते हैं, ग्रेटर देन 0 लेते हैं, देखिए आप इसका डिफाइंड है x ग्रेटर देन 0 पे, x यहां से आप रेट करेंगे x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन 0 पे हम ये फंक्शन पाते हैं fx इक्वल टू 2x प्लस 1 बाई x माइनस 2। सो उसमें हम उस कंडीशन में 0 प्लस पे कांस्टेंट क्वांटिटी p की वैल्यू को इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो ऐसी कंडीशन में हम कंटिन्यूटी की कंडीशंस को अप्लाई करेंगे 0 माइनस पे, लेफ्ट हैंड लिमिट से। सो वी अप्लाई दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 फ्रॉम द left hand limit. So therefore limit x tends to 0 minus of fx is equal to at 0. So student, I think you understand why we apply this function continuous from the left hand side, left hand limit. So मैंने इसको अभी डिस्क्राइब किया क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट से कंटिन्यूअस कंडीशन करने पे हमें p इन्वॉल्व हो पा रहा है, और राइट हैंड की कंडीशन पे हम फंक्शन में p इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमको इसको लेफ्ट हैंड पे अप्लाई कर दिया है। So this is this term equal to limit x tends to 0 f 0 minus s 0 minus s equal to f 0. Now, when x 0 minus s less than 0, when x less than 0, fx is equal to less than 0 पे फंक्शन डिफाइन कैसे देखिए, x less than 0 पे फंक्शन आपका डिफाइन fx इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस px माइनस अंडर रूट 1 माइनस px डिवाइड बाई x। Therefore, at 0 minus x.
the place of x we put 0 minus s. We get under root 1 plus p 0 minus s minus under root 1 minus p 0 minus s. Total divide by x के प्लेस पे 0 minus h. Next, therefore f 0 minus s is equal to under root 1. Here you get 1 minus ps minus 1 plus ps divided by minus s. So students, we get the value of f0 minus s, which is this. Now what is the value of f0? f0 is equal to, देखिए when x is less than or equal to 1 and greater than 0, so function is here. Since when x is less than or equal to 1 and greater than 0, fx is equal to what? 2x plus 1 divided by x minus 2. Therefore, we get the value of f0 if we put x equal to 0 in this function, because our function is defined at the point x equal to 0 is 2 into 0 plus 1 by 0 minus 2. This is equal to minus 1 by 2. Therefore, limit s tends to 0, limit s tends to 0, value of f 0 minus s we put, which is this under root 1 minus ps minus under root 1 plus ps divided by minus s, and value of f0 is minus 1 by 2. माइनस साइन को कैंसिल कर लीजिए दोनों साइड से. दिस इंप्लाइज लिमिट एच टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 माइनस पी एच माइनस अंडर रूट 1 प्लस पी एच टोटल बाई एच इज इक्वल टू 1 बाई 2. स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो चुका आपको. नेक्स्ट आप इसको चेक करेंगे. लिमिटिंग वैल्यू आपको इवेलुएट करनी है. कैसे लिमिट इवेलुएट करेंगे ये तो लिमिट सेक्शन में आप स्टडी किए होंगे, आपको पता होना चाहिए. ये देखिए फॉर्म पहले चेक करते हैं. फॉर्म चेक कर लीजिए 0 बाई 0 लिए. यहाँ पे जब हम यस को 0 पुट करेंगे तो 101 तो 1 यहाँ पे भी 101 1 माइनस 1 0 एंड 0 बाई 0 फॉर्म पे आ गया. इंडिटरमिनेट फॉर्म है. अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं. तो इसके लिए करेंगे क्या, न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे देखें न्यूमरेटर इज हियर व्हाट अंडर रूट 1 माइनस पी एस माइनस न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पे प्लस साइन ले लेंगे, वो हमारा न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट हो जाएगा. तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को. सो अंडर रूट 1 माइनस पी एच माइनस अंडर रूट 1 प्लस पी एच डिवाइड बाई एच. अब इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए. कॉन्जुगेट होगा इसका अंडर रूट 1 माइनस पी एच प्लस कॉन्जुगेट के लिए देखिए माइनस से प्लस कर देंगे प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी एच. टोटल डेरिवेटिव में भी मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 1 माइनस पी एच प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी एच and this is equal to 1 by 2. So you see here this becomes limit as tends to 0. देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे. ये दिस इज द स्टाइल ऑफ a, this term if you suppose this term a and this term b, so you see here a minus b and a plus b. So this is the style of a minus b into a plus b, which is equal to a square minus b square. So 1 minus ps रूट का स्क्वायर करेंगे ये मिलेगा, फिर माइनस 1 प्लस ps.
ये स्टेप कैसे आपको समझ आना होगा, ये हमारा जो स्टाइल हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं कि से a माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी से स्टाइल पे हो रहा है, तो ये हमारा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए के प्लेस पे ये है, बी के प्लेस पे ये है, सो हमने इसका स्क्वायर किया है, ये भी रूट हट गया है, फिर बी का स्क्वायर किया है, रूट हट गया, टोटल बाई एच यहाँ पे है, और ये पूरा रूट का पोर्शन है आपका अंडर रूट 1 माइनस पी एच प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी एच, और दिस इज इक्वल टू 1 बाई। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में लिमिट टेंड्स टू 0, अगर हम इसको अप्लाई करें 1 माइनस पी एच माइनस 1 माइनस पी एच, माइनस साइन एंटर करा दिए ब्रैकेट के अंदर, दिस इज एच, और इसको सेम थिंग्स अंडर रूट 1 माइनस पी एच प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी एच, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ये 1 बाई 2। तो देखिए ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज लिमिट एच टेंड्स टू 0, माइनस पी एच यू गेट माइनस 2 पी एच बाई एच इंटू अंडर रूट 1 माइनस पी एच, दिस टर्म्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी एच and which is equal to 1 by 2. Add 6 to get this value. So next, thing you will see your limit as tends to 0, minus 2p divide by अंडर रूट 1 माइनस पी एच प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी एच, दिस इज इक्वल टू 1 बाई। हाँ, नाउ इफ वी पुट एच इक्वल टू 0 देन वी गेट द फाइनाइट वैल्यू विच इज माइनस 2p बाई, यहां अगर हम एच के प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 प्लस साइन है यहाँ पे, यहाँ भी एस की प्लस पे 0 पुट करने पर ये 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2, so sorry here 1, so this implies minus 2p by 2 equal to 1 by 2, this cancel, p equal to minus 1 by 2, this is your answer। so students, जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल आपको लग रहा था, जो बहुत आसान हो गया, उसमें इसकी जानकारी थी कि अगर ये फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो उसकी कंडीशंस क्या बनेगी, उस कंडीशंस को मैंने डिस्क्राइब किया, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है वो थोड़ा सा वर्क करें, इसमें वर्क करें, अपनी कंडीशंस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि 12th क्लास के मैथमेटिक्स में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी, सच टाइप प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे। अभी तो थोड़ा सा स्टार्टिंग है, आगे जाने के बाद क्रिटिकल थोड़ा सा और आसान होता जाएगा, क्रिटिकल नहीं मैं कहना चाहूंगा, लेकिन हाँ यदि आप वर्क नहीं करेंगे तो थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन आ सकती है, तो आप वर्क करिए, कंडीशन ऐसी नहीं आएगी। तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा पी की वैल्यू को हमें फाइंड आउट कर लिया है। सो स्टूडेंट्स यू केयर, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन आस्किंग 2030। सो स्टूडेंट्स मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन का जो टॉपिक है उसमें आप कॉन्सेंट्रेट होकर के मेरे द्वारा बताए गए जो भी क्वेश्चंस हैं उसको क्लियर कट वीडियो के माध्यम से देखिए, स्टेप्स को देखिए, उसके थियरी को स्टडी करिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं वही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जामिनेशन में, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। सो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। टुडे के लिए इतना ही, और नेक्स्ट थिंग्स आप अपनी बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करें, उसे रिवाइज करें और अपनी कंडीशन को और बेटर बनाएं। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टाइप प्रॉब्लम्स। सो नेक्स्ट टाइम्स we describe another some questions related with the continuity और नेक्स्ट टॉपिक्स जो भी होगा देखेंगे। तो सबसे पहले आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, अच्छे से अंडरस्टैंड करें, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आज इतना ही।